Today's topic is pro rata allotment. Before moving the starting this chapter, दो terms होती हैं बेटा. One is under subscription and another is over subscription. For example, अगर किसी कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स इशूड है, राइट? पब्लिक से उन्होंने they invited applications for 50,000 shares, but there is a possibility that they receive less applications or more applications. There is a possibility of both the situations. So if less applications are received than the issued, less applications are received, or you can say if subscribed capital is less than the issued capital, जितना इशू किया गया है, इशूड कैपिटल क्या होती है? जो कंपनी ऑफर करती है, लेकिन एप्लीकेशंस अगर कम रिसीव की गई हैं, देन इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इफ मोर एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, more applications. So if subscribed capital, or you can say if excess applications are received, this is called oversubscription. Right? Now let us take an example. मैं अगर एक कॉलेज की एग्जांपल ले लेती हूँ. For example, किसी भी कॉलेज में किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए let us suppose 100 seats are available. 100 seats are available. It means कि कॉलेज की तरफ से जो पब्लिकेशन की गई है that is for 100 seats. But there is a possibility कि 100 seats जो हैं, applications जो हैं वो सिर्फ 80 seats के लिए मिली हैं, और only, or you can say 200 applicants are there. 200 applicants are there. Right? So here total seats और total applications जो invited है वो है 100, but हम उन्होंने receive की 80 seats. This is a case of under subscription, under जो seats हैं, और 200 applicants हैं तो वो over हो गया. Now you tell me, अब अगर 80 seats 80 applications हमने receive की हैं तो कितना register करेंगे वो number of students? How many students will be registered? 100 or 80? 80, right. Seats are 100 available, but applicants 200. और यहाँ पे कितनी वो कर सकते हैं maximum? 100 only. Similarly is the case of under and over subscription. Under subscription में we pass journal entries, जितनी भी हम journal entries करेंगे, that is with subscribed capital, subscribed number of shares, because हम उससे ज़्यादा हमारे पास नहीं अवेलेबल है. ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में द जर्नल एंट्रीज दे आर पास्ड विद इशूड कैपिटल, बिकॉज हम इशूड कैपिटल से ज्यादा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, मान लो हमने 40,000 की एप्लीकेशंस रिसीव की हैं और 60 की रिसीव की हैं. This is the case of under subscription. This is the case of over subscription. So all the journal entries will be passed with 40, not with 50 now. Here all the entries will be passed with 50. That is जो share capital में हमारी जाएगा amount, वो 50,000 shares के लिए ही जाएगा in case of over subscription. तो अंडर में तो कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है.
है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ सारी एंट्रीज पास करनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 options are available, 3 alternatives are available, and this is important question for theory also. कई बार theory में भी पूछ लिया जाता है। और तो 3 alternatives available होते हैं कंपनी के पास। फर्स्ट ऑप्शन है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस, कि जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशंस है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए एंड मनी रिफंड कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल इतने में इसमें एक्सेस कितनी है 10,000, तो वो 10,000 को रिजेक्ट कर देंगी, उनकी मनी जो एप्लीकेशन मनी उन्होंने रिसीव की है वो वापस कर देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल होता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा मीन्स प्रपोर्शनेटली, राइट। दैट इज हमारे पास रेशियो क्या है 50,000 सॉरी 60:50। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो रेशियो है 60:50। दैट इज वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स और हमें हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है वो 50,000 शेयर्स की है। तो वो किस रेशियो में शेयर्स को दे देंगे, जिन्होंने भी 6 के लिए अप्लाई किया है उनको 5 शेयर्स दे देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट, दैट इज प्रोपोर्शनेटली उन्हें दे देंगे। Any person who has applied for 6 shares, he will be given 5. Any person who has applied for 12 shares, he will be given 10. Any person who has applied for 18 shares, he will be given 15. So ratio, right? इस proportion में वो जो है वो proportionately जो है वो divide कर देंगे, right? Money not refunded, अब money वापस नहीं करेंगे, रेदर उनको एप्लीकेशंस उतनी देके जो उनका मनी हमारे पास एक्सेस होगा उससे वो नेक्स्ट मनी में रख ले, नेक्स्ट मनी के लिए रख लेंगे, लाइक कॉल्स इन एडवांस। वो मैं प्रैक्टिकल अभी बताती हूँ आपको। द थर्ड alternative available is some applications rejected and some are given the proportionate allotment, that is rejection of applications plus pro rata allotment, राइट। जैसे इसी एग्जाम्पल में वो ले लें कि 2000 को रिजेक्ट कर दिया और बाकियों को प्रो रेटा कर दिया, बाकी कितने बच गए। अगर मैं इसी की एग्जाम्पल लेती हूँ, 60 में से 2000 रिजेक्ट कर दिए तो बाकी कितने बच गए 58। तो उन्होंने 58,000 को 50,000 शेयर्स दे दिए। दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन प्लस प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब जो रिजेक्ट हो गई है, रिजेक्ट जो एप्लीकेशंस हुई हैं उन्हें वो रिफंड कर देंगे, और जहां पे भी प्रो राटा अलॉटमेंट होती है वहां पे रिफंड नहीं होता है, रेदर नेक्स्ट मनी में हम उसको रख लेते हैं। नेक्स्ट मनी दैट इज अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन के बाद कौन सी मनी आती है, अलॉटमेंट मनी, हम उसको अलॉटमेंट के लिए अपने पास रख लेते हैं, एडजस्ट करते हैं। सो दीज आर द 3 alternatives available in case of proportionate, or you can say in case of oversubscription. Now 3 options मैंने आपको बताया है कि प्रो राटा सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन अगर है तो देयर आर 3 options available. First is rejection, second is pro rata, and third is combination of both. अब पिछली वाली मैं एग्जांपल ले रही हूँ। लेट अस सपोज 50,000 shares they have issued, but applications are received for 60,000 shares, right? So application money is 3, allotment money is 4, and call money is 3.
This is the question, let us pose. Now what will be the journal entries? फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है? एप्लीकेशंस रिसीव करने की. तो योर जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब यहाँ पे कितने के साथ अमाउंट आएगा, कितनी मनी के साथ आएगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ आएगा? फुल वैल्यू के साथ आएगा, 60,000 के हिसाब यस, से. जितनी हमने एप्लीकेशंस रिसीव की हैं 60,000 इंटू 3 आएगी एप्लीकेशन मनी ही. ठीक है. सो जितनी हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी 1,80,000. नाउ मैंने आपको बोला है कि इसमें हम अगर हम देते हैं कि उन्होंने सिंपली आपको दे दिया दैट इज द एक्सेस एप्लीकेशंस दे आर रिजेक्टेड, दिस इज रिटन. तो व्हाट विल बी द सेकंड एंट्री? रिजेक्शन में मैंने आपको बताया कि यू हैव टू रिफंड द मनी. सो जर्नल एंट्री विल बिकम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब कैपिटल में तो हमारा कितने शेयर्स के साथ जाना है? 1,50,000 मैम फेस वैल्यू. yes 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3. जो बाकी बच गया, जो एक्सेस एप्लीकेशन है, उससे हमने रिफंड करना है, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा. हमारी एक्सेस एप्लीकेशन थी 30,000, 10,000 एट द रेट ऑफ 3, हम उसे रिफंड कर देंगे. इट मीन्स कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पहली एंट्री में ये होगा और उसके बाद आपका नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा जैसे हम 50,000 के साथ शेयर्स के साथ करेंगे. नाउ अगर प्रोराटा है, प्रोराटा अलॉटमेंट, उन्होंने बोला है कि 50,000 वालों को हम 60,000 शेयर्स को हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे. तो योर फर्स्ट एंट्री विल बी सेम, दैट इज इट विल बी विद 60,000 शेयर्स. द सेकेंड एंट्री में अब जो एक्सेस एप्लीकेशंस हैं हम उन्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उन्हें रिफंड नहीं करेंगे, रेदर वी विल कीप दैट मनी फॉर द नेक्स्ट installment. So what will be the journal entry? The journal entry will become application account debit to share capital and to share allotment. What is the next money over here? Allotment. तो हम उसको allotment के लिए अपने पास रख लेंगे, right? So share application में 180, 150 आपका शेयर कैपिटल में और अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा? 30. मैम इसमें कॉल्स इन एडवांस नहीं करेंगे? आप कॉल्स इन एडवांस है कॉल्स के लिए, अगर आप करते हो तो अलॉटमेंट में आप अलॉटमेंट मनी का नाम लिख सकते हो. जैसे मैंने आपको कल बता रही थी ना, लास्ट क्लास में बोल रही थी कि समटाइम्स यू ओपन दैट मनीज नेम इंस्टेड ऑफ कॉल्स इन एडवांस, तो ये हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं. ओके मैम. नेक्स्ट एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो हमारी नॉर्मल होती है, टू शेयर कैपिटल. अब इसमें आपका 50,000 इंटू 4, 2 लाख नॉर्मल मनी जाएगी. नाउ बैंक में हम कितना डालेंगे अब, क्योंकि 2 लाख में से हम ऑलरेडी 30,000 रिसीव रख कर चुके हैं उनसे. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, हम कितना डालेंगे अब? 2 लाख में से 30,000 जो एडजस्टेड, 1,70,000. 170, यस. आउट ऑफ 2 लाख जो हमने 30,000 एडजस्ट कर लिया है उसे डिडक्ट करके 1,70,000 डाल देंगे. राइट. सो प्रोराटा में इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग द मनी हम क्या करते हैं, उसे नेक्स्ट मनी में यूज कर लेते हैं. अब अगर रिजेक्शन और प्रोराटा है, जैसे मैंने बताया था कि अगर 2,000 रिजेक्ट कर दिए और रिमेनिंग को प्रोराटा कर दिया, दैट इज रिमेनिंग 58 बच के उन्हें 50,000 शेयर्स दिए हैं, तो दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द एंट्रीज. सो फर्स्ट एंट्री विल रिमेन द सेम, देयर वोंट बी एनी चेंज. सेकेंड एंट्री में क्या हो जाएगा अब आपका? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट and to bank also.
अब अमाउंट मुझे बताओ कैसे आएंगे। एप्लीकेशन में तो 180 जाएगा, कैपिटल में कितना आएगा? कैपिटल में तो 50,000 शेयर्स ही आएंगे। कैपिटल तो हमेशा हमारी इसी की इक्विवेलेंट रहनी है 150। अलॉटमेंट में कितना जाए, रिफंड में कितना जाएगा? जितना हमने रिजेक्ट किया है 2000 एट द रेट ऑफ 3, 6000 और एक्सेस है हमारे पास 8000 शेयर्स, 8000 एट द रेट ऑफ 3 हमारा अलॉटमेंट में चला जाएगा। देखो ये क्लियर है? वन 180 से हमारे एप्लीकेशन में चला गया। शेयर कैपिटल में हमारा जो नॉर्मल शेयर्स हैं 50,000 वो चले गए। अलॉटमेंट में हमारा जो है एक्सेस एप्लीकेशन चला गया और जितना हमने रिफंड कर दिया वो 6,000 बैंक में चला गया। अब थर्ड एंट्री भी सेम होगी, थर्ड एंट्री में नो चेंज। फोर्थ एंट्री में अब अमाउंट क्या आएगा? देखो सीक्वेंस ऑफ एंट्रीज वही है जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में किया था, दैट इज सेम। अब फोर्थ एंट्री में हमारा अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख में से कितना डिडक्ट करेंगे हम? अब 24,000 जो हमने एडजस्ट किया है, दैट इज 1,76,000. So this is rejection plus pro rata. After that, all the journal entries will be same. When in the question it is written that you have to prepare cash book also, right? So cash book अगर prepare करने के लिए बोली गई है तो journal entries के अंदर आप cash book वाली जो entries है वो ना करो। In the journal entries, cash book वाली entries को place करने की जरूरत नहीं होती है। Rather जब आपको कैश बुक बोला गया ना, कैश बुक का मतलब है कि आपको सीधा उसको जो है अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अकाउंट कौन सा? दैट इज कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट आपको पता है कैसे बनता है, बस हमने वो फॉर्मेट बनाना है। तो हम यहाँ पे कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन किया है उसी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर डेट्स गिवन है कि इस डेट को ये हमने किया है तो आप डेट का कॉलम बना लो, ठीक है। नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। सो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अगर क्वेश्चन में कई बार होता है ना कि आपने एप्लीकेशन इस मनी को कम की है, इस डेट को एप्लीकेशन मनी रिसीव की है, तो फिर आप लोग जो है वो डेट का कॉलम बना के उसमें आपको लिखना पड़ेगा। सो कैश बुक, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। नाउ जैसे आपकी फर्स्ट एंट्री बैंक से रिलेटेड होती है, आपको पता है दिस साइड शोज रिसिप्ट एंड दिस साइड शोज पेमेंट्स, राइट। तो आपने फर्स्ट मनी रिसीव की शेयर एप्लीकेशन, तो आप फर्स्ट एंट्री नहीं डालोगे जर्नल में, आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000, ठीक है। देयर इज नो नीड टू पास द जर्नल एंट्री इन द बुक नाउ, इन द जर्नल। सेकेंड एंट्री में आपका था शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, तो आप यहाँ पे कैश बुक के अंदर बाय शेयर एप्लीकेशन डालोगे जो आपने रिजेक्ट की है मनी 15,000, और जो बाकी की एंट्री है वो जर्नल में चले जाएगी। शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड टू शेयर अलॉटमेंट। तो नॉर्मली पेमेंट साइड पे सिर्फ रिजेक्शन वाली एंट्रीज आती हैं आपकी। उसके बाद आपकी सेकेंड एंट्री है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, वो आपकी जर्नल में जाएगी क्योंकि उसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है। बैंक वाली एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट सॉरी, वो आपकी यहाँ पे चले जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट 85,000। अब वो इसमें नहीं डालनी है आपको।
अगर कॉल की एंट्री होती तो कॉल आप इधर लिखते, लेकिन जो उसका रिसिप्ट एंट्री है वो सीधा कैश बुक में डालते। अब नॉर्मली जैसे हम इसको बैलेंसिंग करते हैं वो करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,75,000 and 1,60,000। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने ये भी लिखा है एंड प्रिपेयर द लेजर्स आल्सो, लिखा है कि नहीं मेरा ख्याल, वेट लेट मी सी, हाँ, लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो लेजर अकाउंट्स में अब आपके कौन से लेजर अकाउंट्स बनेंगे, एक शेयर कैपिटल का बन जाएगा जैसे मान लो, फिर शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन का। तो लेजर पोस्टिंग जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही लेजर पोस्टिंग करेंगे। जैसे मैं आपको शेयर कैपिटल का लेजर बना के बता देती हूँ। सेम वैसे ही डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले लेजर में क्या जाएगा आपका, बाय बैंक, हमने 90,000 रिसीव किया। दूसरे टाइम पे क्या चला जाएगा, शेयर कैपिटल, सॉरी मैंने ये एप्लीकेशन की पोस्टिंग कर दी है, मैं शेयर कैपिटल बना रही थी। तो शेयर कैपिटल में क्या जाएगा बताओ बेटा, बाय शेयर एप्लीकेशन, बाय शेयर अलॉटमेंट, अगर फर्स्ट कॉल है, कॉल मनी है तो वो भी चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो है ही नहीं, तो एप्लीकेशन में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया था हमने, 60, अलॉटमेंट में 1 लाख, तो 1,60,000 आपका आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। तो जितने भी आपके लेजर अकाउंट्स होंगे आप उनको लेजर पोस्टिंग की तरह शो करोगे। मैम बट अगर हमें कैश बुक दी हो तब भी जर्नल एंट्रीज दिखा सकते हैं ना बैंक अकाउंट वाली? हाँ हाँ सॉरी, मैम अगर हमें कैश बुक बनाने के लिए बोला हो हम तब भी बना सकते हैं ना जर्नल एंट्रीज कैश की जो होती हैं, जैसे टू एक्चुअली that is when you know one more than one category is given। जैसे हमने पीछे अभी तक क्या किया है कि 2,000 रिजेक्ट हो गई और 58,000 वालों को 50,000 के शेयर्स दे दिए, राइट, ये किया है हमने। तो एक ही कैटेगरी थी, मतलब वन कैटेगरी के अंदर हमने प्रोरेटा कर दिया। बट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स मोर देन 2 कैटेगरीज आर गिवन, 2 कैटेगरीज तक भी आप कर सकते हो, लेकिन कई बार 2 से ज्यादा कैटेगरीज दी होती है। उस केस में एनालिटिकल टेबल बनाना इट्स अ गुड ऑप्शन, राइट। एनालिटिकल टेबल बनाना जो है वो सही रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका ये क्वेश्चन है, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड having an authorized capital of rupees 10 lakh divided into shares of 10 each, issued 50,000 shares at a premium of 3। so उसने issue किया है 50,000 shares of rupees 10 each at premium of 3। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। तो 50 के शेयर्स थे, लेकिन हमने जो एप्लीकेशंस रिसीव की हैं वो 60,000 शेयर्स के लिए की हैं। The directors allotted the shares as follows। Now you can see there are 3 categories, राइट। अब इन 3 कैटेगरीज के लिए इट इज बेटर कि मैं अगर आपको एनालिटिकल टेबल बना के करवाऊं। हाँ, यू कैन डू द क्वेश्चन विदाउट एनालिटिकल टेबल आल्सो, बट एक बार मैं आपको बनवा के दे रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि अगर आपको बनाना पड़े तो आप कैसे बना सकते। दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन भी आप कर सकते हो।
तो बाकी कॉलम्स मैं बाद में बनाती हूँ। सो इसके आपके जो कॉलम्स बनेंगे वो आ जाएगा आपका कैटेगरीज, सो फर्स्ट आपका कॉलम आ जाएगा कैटेगरीज, सेकंड शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, excess shares, excess money, used or utilized or adjusted, कुछ भी word लिख सकते हो, adjusted towards allotment, adjusted towards call, and the last one is refund. अब देखो इसमें 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल, तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें हमने 40,000 दे दिए, that is 40,000 shares they received in full. The categories of 40,000 shares they are given 40,000 full. Second category के अंदर क्या है, applicants for 15,000 shares, जिन्होंने 15,000 के लिए अप्लाई किया, they are allotted 8,000 shares. तो 15,000 वालों को हमने कितने दे दिए, 8,000. थर्ड कैटेगरी के अंदर क्या आ गया, applicants for 5,000 shares, they received 2,000 shares on allotment and their money refunded. तो सिर्फ इनकी मनी उन्होंने रिफंड कर दी है, इनके बारे में कुछ नहीं बताया, तो इनकी मनी को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, लेकिन इसके बारे में स्पेशली बोला हुआ है तो हमें वो मनी रिफंड करनी है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री कैटेगरीज। अब आप ये देखो कि अप्लाइड शेयर्स आपके 60,000 के इक्वल आ गए, अलॉटेड शेयर्स आपके 50,000 के इक्वल आ गए। अब हम निकालेंगे एक्सेस शेयर्स। फर्स्ट में कोई एक्सेस नहीं है तो सारे कॉलम्स आपके ब्लैंक हो गए। सेकंड में एक्सेस शेयर्स कितने हैं, 7,000, थर्ड में 3,000। सो ये आपका नंबर आया, बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं। अब इनकी मनी कितनी पड़ी हुई है आपके पास, जो आपके पास ये एक्सेस शेयर्स आए हैं आप उनको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एट द रेट ऑफ 3। तो 7,000 इंटू 3 21,000 इस कैटेगरी की एक्सेस मनी पड़ी हुई है, 3,000 इंटू 3 9,000 ये इस कैटेगरी की एक्सेस मनी पड़ी हुई है। सो दिस कॉलम, जब हमने एक्सेस मनी निकालनी है, दिस कॉलम इज मल्टीप्लाइड विद एप्लीकेशन मनी। Now, this excess money, it can be used for allotment or call monies. Now, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें allotment में कितना डालना है और call में कितना डालना है? उसके लिए आपके shares allotted कितने हैं? 8,000 और allotment money कितनी है? 5। तो 8 into 5 40 बन रहा है। It means कि हम पूरी money जो है 21 की 21 allotment में डाल सकते हैं। बिकॉज आपकी जो अलॉटमेंट ड्यू बन रही है वो 40,000 बन रही है, राइट। हियर अलॉटमेंट ड्यू इज 40,000। ड्यू अगर मैं बात करूं, ड्यू है अलॉटमेंट आपकी 40,000, तो 40 में से हम जितना हमारे पास पड़ा हुआ है पहले उसको यूटिलाइज, तो इस कॉलम में कुछ नहीं आएगा, कॉल वाले कॉलम में। और इसमें नॉर्मली नहीं आता है, नॉर्मली नहीं आता है इसमें। जितना भी आपका एक्सेस मनी होता है वो हम अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लेते हैं। ये जो आपका 9,000 है इसे हम रिफंड कर देंगे, क्योंकि वो स्पेशली उसने लिखा हुआ है दैट द एक्सेस मनी इज रिटर्न्ड।
all the amounts due on allotment was received. The first call was made and the money was received except on 100 shares. तो आपकी एप्लीकेशन पे 3 थी, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 3, और ये जो फर्स्ट कॉल है ये 100 शेयर्स ने नहीं पे की, तो ये हो गए हमारे कॉल्स इन एरियर्स। अब फर्स्ट एंट्री आपकी क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसमें आपका कितना आएगा, 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3, 180। सेकेंड मंथ का क्या आएगी आपकी जर्नल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। एप्लीकेशन में 180 चला गया, कैपिटल में कितना जाएगा, 50,000 इंटू 3, 1,50,000, अलॉटमेंट में 21,000 और बैंक में 9,000। थर्ड एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, प्रीमियम है ना अब इसमें, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। शेयर अलॉटमेंट में 50,000 इंटू 5, 2,50,000। शेयर कैप प्रीमियम में, प्रीमियम कितना है, 3 रुपीज, तो 50 इंटू 3, 1,50,000 और 1 लाख आपका शेयर कैपिटल में चला जाएगा। फोर्थ एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस 250 में से ये जो 21,000 हमने एडजस्ट कर लिया है, हम उसके साथ करेंगे शेयर अलॉटमेंट की मनी डालेंगे, तो आपका पास कितना आ गया, applicants for 5,000 shares received 2,000 shares on allotment, excess money being refunded। एक्सेस मनी का मतलब यहाँ पे, सॉरी मैं रिफंड में नहीं डाल रही हूँ, यहाँ पे उन्होंने एक्सेस मनी रिफंडेड का मतलब है कि इसके बाद अगर कोई मनी बच जाती है आपकी, तो वो हम दैट इज अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद कुछ बचेगा वो रिफंड में डालेंगे, तो यहाँ पे आपका 9,000 भी अलॉटमेंट में आएगा। तो बेटा रिमेंबर एक चीज और, कि आपको अगर प्रो रेटा है, प्रो रेटा में आपको नेक्स्ट मनी में ही लेके जाना है उसको, नेक्स्ट मनी मतलब अलॉटमेंट में, तो ये तो सीधा ही 30,000 इधर चला जाएगा। यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है ना, एक्सेस मनी बीइंग रिफंडेड, इसका मतलब है कि हमें कॉल में मनी एडजस्ट नहीं करनी। अगर लेट अस सपोज यहाँ पे ज्यादा मनी होती तो उसके पास, हमारे पास ऑप्शन होती है कि अलॉटमेंट के बाद उसे कॉल में एडजस्ट कर लिया जाए, लेकिन अगर रिफंडेड लिख दिया तो हम उसको रिफंड करते हैं। मैं आपको ये भी एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें कॉल में भी एडजस्ट करते हैं हम। फिफ्थ एंट्री विल बी फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। $50 into 5, 2,50,000. Sorry, 50 into 3, 1,50,000. अब 100 शेयर वालों ने 3 रुपये पे नहीं किए हैं, तो उसमें हम कॉल्स इन एरियर्स ओपन कर लेते हैं। जो जर्नल एंट्री विल बिकम बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में 150 गया, कॉल्स इन एरियर्स में कितना गया, 300,
और आपका बैंक में कितना जाएगा 1,49,700। सेकंड कॉल के बारे में लिखा नहीं है क्योंकि ऊपर उन्होंने लिखा था एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और नीचे क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ तो हम लोग जो है वो नहीं करेंगे। इसमें भी आपको